ગુજરાતમાં એક સાથે 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને તેના જ કારણે વહીવટી તંત્ર છે તે અત્યારે સજાગ બન્યું છે. તો બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવે કે આવતીકાલથી ગુજરાતમાં 6 દિવસ માટે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે પણ કરવામાં આવી છે. વાત કરવામાં આવે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વરસાદની જે સિસ્ટમ છે તેનો કારણે ત્યાં વરસાદ છે તે અતિ ભારેથી ભારે વરસાદ છે તે થઈ શકે તેમ છે. આજે સમગ્ર વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તેના કારણે અમદાવાદ, વડોદરા અને નવસારી તરફના જે વિસ્તારો છે ત્યાં શાળાઓમાં રજા પણ જાહેર કરવામાં આવી છે આવતીકાલ માટે. તો બીજી બાજુ જે વરસાદની સિસ્ટમ કઈ જગ્યા ઉપર સક્રિય છે અને તેની અસર શું થવાની છે તે તમામ માહિતી આપણે વિન્ડી મેપના માધ્યમથી સમજીશું કે વરસાદ કઈ જગ્યાએ કેટલો પડવાનો છે અને કઈ જગ્યાએ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. તો આપણે સીધી જ વિન્ડી મેપના માધ્યમથી આ જે વરસાદી સિસ્ટમ છે તેની ઉપર નજર કરીએ. વિન્ડી મેપના માધ્યમથી આપણે સમજીશું કે જે વરસાદી સિસ્ટમ છે તે અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવતીકાલે જોવા મળી રહી છે અને તેની અસરની વાત કરવામાં આવે તો વાપીથી લઈ સુરત, વડોદરા સુધી તેની અસર છે તે જોવા મળવાની છે. જેમ જેમ આવતીકાલના જે કલાકો પસાર થઈ રહ્યા છે તેમ વરસાદી સિસ્ટમ છે તે મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા જોવા મળી રહી છે અને તેના જ કારણે સુરત, વડોદરા, ગોધરા સુધી આ વરસાદની સિસ્ટમ જે જોવા મળી રહી છે તેના કારણે આ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે. તો બીજી બાજુ બપોરના સમય બાદ આ વરસાદી સિસ્ટમ છે તે અમદાવાદ અને મહેસાણા સુધી પણ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, નડિયાદ, લુણાવાડા, બાયડ, ઈડર, મહેસાણા સુધી આ વરસાદી સિસ્ટમ છે તે જોવા મળી રહી છે અને તેના કારણે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે પણ જોવા મળી શકે તેમ છે. તો બીજી બાજુ જે અલગ અલગ સિસ્ટમો જે આવતીકાલથી સક્રિય થઈ રહી છે તે મોટા ભાગે વડોદરા, અમદાવાદ અને સુરત બાજુ એટલે કે કહી શકાય કે મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની અસર છે તે જોવા મળવાની છે. આને જ લઈને આપણે વાત કરવામાં આવે આઈએમડી દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી છે, આઈએમડીની આગાહી ઉપર નજર કરવામાં આવે તો આવતીકાલ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી છે તે આપવામાં આવી છે. જેમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી અને ડાંગ. એટલે જે મધ્ય ગુજરાતથી જે દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાથે જ ઓરેન્જ એલર્ટ છે તે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર, નવસારીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જે પ્રકારે અત્યારે ગુજરાતમાં વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તેને લઈને વહીવટી તંત્ર પણ સજાગ થયું છે અને અમદાવાદમાં જે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈને આવતીકાલે તમામ શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે અને તેને જ લઈને આજે પરિપત્ર પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલાને લઈને પહેલા તો હવામાન વિભાગ દ્વારા શું આગાહી કરવામાં આવી છે તેની ઉપર એક નજર કરીએ. जो फोरकास्ट दिया गया है 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक अगले 7 दिन के लिए, इसमें कई स्थानों में से लेकर ज़्यादातर स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। इसके साथ 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपका हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, साथ में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया गया है। और इसमें जो थंडरस्टॉर्म वार्निंग है अगले 4 दिन के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दिया गया है, दोनों क्षेत्रों के लिए है। आज 30 जुलाई जो हेवी टू वेरी हेवी कई स्थानों में होने का संभावना रहेगा, वो जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन में वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड और तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। और हेवी रेनफॉल खेड़ा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, भरूच के लिए येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग है। कल के लिए 31 जुलाई के लिए एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है, रेड वार्निंग के साथ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली दक्षिण के सारे जिले रेड वार्निंग में है। और वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद के लिए दिया गया है।
और बाकी जो जिला रहेगा इसमें येलो वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में रेड वार्निंग भावनगर और बोटाड के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली के दिया गया है। बाकी जो जिला है हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग दिया गया है। 1 अगस्त के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिया गया है गुजरात रीजन में, अहमदाबाद और आनंद के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है बनासकांठा, पाटन और भगथराट के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल वेरी हेवी और भी डिस्ट्रिक्ट है मेहसाना, साबरकांठा, अरावली और बहराइच के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल खेड़ा, पंचमहल, महिसागर, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड और दमन दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में रेड वार्निंग दिया गया है सुरेंद्रनगर और राजकोट के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल भावनगर, मोरबी, बोटाड और कच्छ के लिए दिया गया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। डे 4 जो वार्निंग है इसमें हेवी रेनफॉल को वार्निंग है मेनली गुजरात रीजन में उत्तरीय जो जिला है इसमें येलो वार्निंग दिया गया है। और इसके साथ जो तटीय क्षेत्रों में ड्यू टू स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट कारण स्ट्रॉन्ग विंड होने का संभावना रहेगा। दक्षिण गुजरात डे 1, डे 2 और इसमें जो पवन का स्पीड रहेगा 20 से 25 नॉट गास्टिंग स्पीड रहेगा, 30 नॉट होने का संभावना रहेगा। और मेनली जो पवन का दिशा रहेगा दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति बने रहेंगे। और जो डे 1 टू डे 2 जो है 30 एंड 31 जुलाई जो है साउथ गुजरात रीजन में जो तटीय क्षेत्र है इसमें फिशरमैन वार्निंग दिया गया है स्क्वाली वेदर के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। डे 3 मतलब 1 अगस्त को साउथ गुजरात और एडजॉइनिंग जो उत्तर गुजरात की तटीय क्षेत्र है इसमें भी स्क्वाली वेदर के साथ वार्निंग रहेगा। डे 4 में स्क्वाली विंड रहेगा नॉर्थ गुजरात रीजन में 2 अगस्त को, उसमें जो स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर, गास्टिंग स्पीड जो रहेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। अहमदाबाद के लिए आज का जो पूर्वानुमान दिया गया है क्लाउडी स्काई रहेगा, 1-2 स्पेल्स रेन थंडरस्टॉर्म का संभावना रहेगा। कल के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना रहेगा। सर कौन सी सिस्टम है? अभी जो सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डीप डिप्रेशन अभी परसिस्ट करे मध्य पूर्व पश्चिम मध्य छत्तीसगढ़ और जो एडजॉइनिंग जो सटे हुए विदर्भ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के पास 21 डिग्री नॉर्थ और 81.3 डिग्री ईस्ट में इसका पोजीशन है। ये जो मूवमेंट रहेगा इसका नियरली वेस्टवर्ड मूवमेंट रहेगा अक्रॉस छत्तीसगढ़। ये नेक्स्ट 12 घंटा में डिप्रेशन होने का संभावना रहेगा, डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन होने का संभावना रहेगा। देहारपुर इसके बाद इसका जो मूवमेंट रहेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मूवमेंट रहेगा अक्रॉस विदर्भ और एडजॉइनिंग जो दक्षिण मध्य प्रदेश है एज ए डिप्रेशन इसका मूवमेंट रहेगा नेक्स्ट 24 आवर में। मानसून ट्रफ का अभी पोजीशन नॉर्मल से थोड़ा साउथवर्ड है। ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो ईस्ट वेस्ट जो शेयर जोन बने हुए हैं वो 21 डिग्री नॉर्थ में इसका पोजीशन है। इसका जो पोजीशन इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन है 3.1 किलोमीटर से लेकर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसका टिल्टिंग साउथवर्ड है। एक WD अभी नॉर्थ हरियाणा और उसका नेबरहुड में 3.1 एंड 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए एक ऑफशोर ट्रफ भी बने हुए हैं अभी गुजरात कोस्ट से लेकर नॉर्थ केरला कोस्ट तक। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे